الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے جو رمضان ہی میں اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے. ہمارا وقت بھی طے ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو کشا کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. چند دن باقی ہیں رمضان میں، اور یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ابھی اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوا. صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم گنہگار لوگ اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں اتنی بکھری ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں اتنے ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ ہمارے مالک کا کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو عبادتیں ہیں اس پر خوش ہو کے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے مہینے میں جو روزے سے رہا ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العزت سے اجر چاہتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ رب کا کرم ہے. لیکن میں تقریباً ہر رمضان میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اور اس وقت بھی خطبے کے شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں محنتیں ہم بہت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. نوافل کا اہتمام ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ سب بڑھ جاتی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں، نوجوان، جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ صورتحال اللہ رب العزت کو ناراض کرتی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. موت تک ہمیں اللہ رب العزت کا فرمانبردار بن کر کے رہنا. یہ 5 وقت کی نمازیں یہ ہر عاقل بالغ مرد و خاتون پر فرض ہے. جب کوئی بھی نماز بندہ چھوڑتا ہے، فرض نماز، تو اللہ رب العزت کا غضب بھڑکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں عبادت کرنے والے صرف ہو جائیں اور بقیہ مہینے اللہ رب العزت کو بھول جائیں. ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ جو لوگ صرف رمضان میں فرض نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد نمازیں بھول جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں، وہ رمضان کے بندے ہیں. وہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے، وہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہمارا حبیب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی تلوار اپنی نیام سے نکال لی تھی
اور انہوں نے کہا اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا لأضرب عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ بے قابو تھے صحابہ کرام کہ ہمارا حبیب ہم سے رخصت ہو گیا، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ آئے ممبر کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، ایک جھٹکا دیا اور بٹھا دیا، اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد فات، جو شخص رمضان کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان گزر رہا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، وہ رمضان میں بھی ہے غیر رمضان میں بھی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العزت کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ہماری دعا ہونا چاہیے کہ ہم تمام کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ میرے مالک ہم مطیع فرما بردار ہو، یا رمضان کی برکتیں سمیٹیں اور رمضان کے بعد سب لٹا کر کے برباد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا نہ بنائے۔ اس رمضان میں عہد کیجئے کہ ہم فرض نمازوں اور جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں اس کی پابندی کریں گے، نیک بنیں گے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں اس رمضان میں کہ آئندہ جو ہماری زندگی ہے اس میں اللہ رب العزت کا فرمانبردار بندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ پورا رمضان مغفرت کا مہینہ تھا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں احادیث میں یہ وارد ہے، آیا ہوا ہے، اللہ رب العزت تو مستوی عرش ہے، اپنے عرش پر متمکن ہے، اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے شہرک سے قریب ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے تھے، وہ دیکھتے تھے کون ہے میری عبادت میں مصروف ہے، کون ہے جو آخرت چاہتا ہے، کون ہے جو جنت چاہتا ہے، میں اس کو جنت دے دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزادی عنایت فرماتے ہیں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عہد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں اس مہینے کے اندر۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف عبد من دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص پر بدنصیبی مسلط ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ ہم تمام کی مغفرت ہوئی کہ نہیں یہ تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن دلوں میں ایک سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے جن پر اللہ رب العزت کی نظر کرم ہوتی ہے۔ ہماری عبادات جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو ہمیں ایک سکون ہوتا ہے، دل میں ایک طمانینت آتی ہے اور ہماری زندگیوں میں رونق پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہوتا ہے، ہماری طبیعت جنت کی طرف لگنے لگتی ہے۔ یہ سمٹمز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی مغفرت کے انڈیکیشنز ہوتے ہیں۔ دنیا کی حیثیت کم لگنے لگتی ہے، آخرت کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دل کا سکون، اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخرت کی تڑپ، شوق دیدار الہی کا جذبہ اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر سے وابستہ ہونا، یہ کیفیات اگر ہیں ہمارے پاس تو آپ کو بشارت ہے کہ انشاءاللہ العزیز خیر ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی نوید انشاءاللہ دیر اور سویر آئے گی۔ نہیں کیفیت بن سکی ہے تو ابھی چند ایام باقی ہیں، رات میں اپنے رب سے رونا، تہجد میں گڑ گڑانا، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے اللہ رب العزت سے رونا کہ میرے مالک کو کیفیت میرے دل میں عطا فرما دیجئے کہ میرا دل آپ کا ہو کر کے رہتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے، مستحکم فرما دے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے اس رمضان میں مغفرت کرا لی تو اچھا ہے، ورنہ بدنصیب شمار ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، دوسرے ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے ممبر پر چڑھے تو آمین کہا،
सहाबा ने पूछा कि ये तो नई बात हो गई आज। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, यह नया मामला आज पेश आया है। जिब्रील अमीन आए और मुझसे कहा, 3 बातें मैं पेश कर रहा हूं अल्लाह ताला की तरफ से, और तीनों पर आमीन कहिए। पहली बात तो यही कि रमजान कोई अगर पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा ले, वो बदनसीब है, मैंने उस पर लानत भेजी और आमीन कहा। दूसरी बात यह कि मजलिस में मेरा नाम यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और कोई शख्स सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना कहे, उस पर लानत है। पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब भी कभी हमारे हबीब का नाम आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद को गूंज जाना चाहिए। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है हमारे ऊपर। तो फरमाया कि नाम आए मेरा और कोई दरूद ना भेजे, उस पर लानत हो, वो बदनसीब है। मैंने आमीन कहा। और तीसरी बात यह कि कोई भी शख्स अपने माँ बाप को, दोनों को या दोनों में से एक को, बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर ले, उस पर लानत हो, वो बदनसीब शख्स है। मैंने आमीन कहा। दोस्तों और साथियों, इबादत करना तो बहुत आसान है, सजदे में घट्टा हासिल कर लेना मुमकिन है, कुरान मजीद की तिलावत कर लेना यह भी तकरीबन आसान है। बूढ़े माँ बाप के कदमों में बैठ करके उनकी खिदमत करना, उनको दवा पिलाना, उनकी जरूरतों को पूरी करना, उनकी झिटकियों को सुनना, यह इससे मुश्किल काम है। आदमी नेक है कि नहीं नेक है, उसको देखना है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उसका ताल्लुक कैसा है। माँ बाप के सामने खड़े रहिए, जब तक माँ बाप ना कहें बैठिए नहीं, और बैठिए तो माँ बाप के सामने कुर्सी पर मत बैठिए, उनके कदमों में बैठिए। माँ बाप की बातें सुनिए, उनकी डांट को बर्दाश्त कीजिए, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का सबसे बुनियादी और दरमियानी दरवाजा और रास्ता है। जिसके माँ बाप उससे रूठे हुए हों और जिसके माँ बाप उससे नाराज हों, जान लीजिए कि जन्नत में जाने का रास्ता मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप दूसरों से दुआ करते हैं कि हमारे लिए दुआ कराइए, हमारे लिए दुआ कीजिए। आपकी जन्नत आपके घर में मौजूद है। नौजवानों, तुम्हारी बीवियां तुमको मिली हुई हैं, बीवियों का हक जरूर अदा करो, लेकिन बीवियों के फंदे में और उनकी अफवाहों में आकर के माँ बाप को भूल मत जाओ। ये वो माँ है जिसने अपनी पेट में तुमको पाला है, ये माँ है जिसने तुमको जन्म दिया है। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूं कि एक सहाबी ने अपनी माँ को पीठ पर बैठा करके हज करवाया है, मिना में लेके घूमा, मुज़दलिफा में फिरा, तवाफ किया, सही किया और पूछा कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हक अदा हो गया? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन, तेरे पैदाइश के वक्त तेरे माँ से जो एक हल्की सी चीख निकली थी पहले, उसके बराबर भी नहीं हुआ। ये माँ जो हमें बचपन में बोलना सिखाती है, कभी कभी हमारे नौजवान कहते हैं कि अम्मा आप बहुत तेज बोल रही हैं। सुन लो, जिसने आपको और हमको बोलना सिखाया उसके सामने अपनी आवाज को पस्त रखो। वो बाप जो साहिबान बना हुआ है, घर में आपकी आराम और आशाइश का ख्याल करता है, आप बीमार होते हैं तो तड़पता है, आपकी शादियों की फिक्र करता है, आपके रोजगार के लिए परेशान रहता है, उस बाप को कभी कोई ऐसा जुमला मत कहना कि उसके दिल में परेशानी वाक़ हो जाए। ये तुम्हारी जन्नत है, ये दुनिया में तुम्हारे लिए वजह करार है, वजह सुकून है, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तुम्हारे दर्जात की बुलंदी के लिए ये तुम्हारे सामान है। कभी भी तुम इनके सामने गलत रवैया अपनाना नहीं। कोई भी अपने माँ बाप में से बूढ़े माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर लानत है। आज माँ बाप मौजूद है, उनकी कदर कीजिए। याद रखिए, माँ बाप अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो तुम रोओगे और तुम फिर उसकी तलाफी नहीं कर सकोगे कि माँ बाप की खिदमत करता, काश कि मुझे होश आ जाता। जितने लोग भी इस मस्जिद में मौजूद हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, आज उनसे पूछो कि उतने माँ बाप को वो याद करते हैं तो रोते हैं। अब जिनके माँ बाप रुखसत हो गए उनके लिए दुआ कीजिए, दुआओं की सौगात दीजिए। रमजान में बहुत कुछ इबादत करते हैं, उसका सवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको मिलेगा। इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लह। इंसान मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, लेकिन 3 चीजों से जरिए उसका अमल जारी रहता है। सदक़े जारिया है, नेक अमल कर रहा है, मस्जिद बनाता, मदरसा बनाता, यतीम खाना बनाता है, याद रखिए उसका सवाब उसे मिलेगा। नेक इल्म जिसको लोगों को दे दिया उसका सवाब मिलेगा। नेक औलाद जो दुआ करती रहे, लड़का दुआ करता है, लड़की दुआ करती है, उसका सवाब माँ बाप को मिलता है।
लड़कों को तरबियत याफ्ता बनाइए, नेक बनाइए, लड़कियों को तरबियत याफ्ता बनाइए, नेक बनाइए, ताकि इस दुनिया से जब आप चले जाएं, हम चले जाएं, तो हमारे बच्चे हमारे लिए दुआ करें। आपने एक सहाबी को बताया कि सुनो, बंदा कहेगा कि बारे अल्लाह, मैं तो कल बड़ी नेमतों में था, आज उससे बड़ी नेमतों में हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि तुम्हारी नेक औलाद ने तुम्हारे लिए दुआ किया है। माँ बाप तरस रहे हैं कब्रों में, हमारे दुआ का इंतजार करते हैं, और कभी कभी हमारे ख्वाब में आकर के हमसे शिकायत करते हैं कि क्यों हमारे लिए तुम दुआ नहीं करते। आगे बढ़िए, दुआ कीजिए, माँ बाप मौजूद हैं उनकी खिदमत कीजिए, वरना बदनसीबी इस दुनिया में आ जाएगी। ये जो घर है, ये जो हवेलियां हैं, ये जो बैंक बैलेंस है, ये दुनिया का जो स्टेटस है हमारा, ये जो उसकी लज्जतें हैं, सब धरी रह जाएंगी। हमारे माँ बाप, हमारे दादा चले गए कब्रों में, हमारी भी बारी है, हम भी चले जाएंगे। हमारे पास जो चीज बचेगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इबादत, माँ बाप की खिदमत, गुरबा मसाकीन, यतीम लाचार मजबूर मुस्तहिकीन के साथ हमारा अच्छा बर्ताव, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में बेहतरीन अंदाज से किए हुए काम, यही सब काम आने वाले। दोस्तों और साथियों, यह रमजान जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर तब्दीलियां पैदा होनी चाहिए, वो तब्दीलियां जो हमें चार्ज करके रखें अगले रमजान तक। यह रमजान हमको बताता है कि हमारे अंदर इखलास पैदा होना चाहिए। हमने रोजा रखा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, कमरे में जाके पानी नहीं पिया इसलिए कि कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो तो देख रहा है जो पूरी कायनात को देख रहा है। अल्लाह ताला के लिए रोजा रखा, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है, मैं उसका बदला दूंगा। सारे अमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हैं, लेकिन रोजा अल्लाह ताला ने अपने लिए इसलिए कहा कि सारे अमाल तो लोग देखते हैं। कोई नमाज पढ़ता है तो उसे देखता है कोई ना कोई अगर ज़कात देता है तो कम से कम वो शख्स देखता है जिसको ज़कात दी जा रही है। कोई शख्स अगर हज करता है तो यहां से वहां तक लोग देखते हैं उसे, लेकिन रोजे से कौन है कोई नहीं जानता। हम आपके लिए हुस्न ज़न रखते हैं, आप हमारे लिए हुस्न ज़न रखते हैं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है, मैं उसका बदला दूंगा। पूरी जिंदगी में यही कैफियत होनी चाहिए। तुम्हारे जो अमाल हैं वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होना चाहिए। रियाकारी खत्म होना चाहिए, दिखावा खत्म होना चाहिए, शोहरत तलबी खत्म होना चाहिए, वाहवाही खत्म होना चाहिए। एक साहब हाजिर हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स मैदान जंग में जाता है, शहीद होने के लिए जाता है, अल्लाह ताला के लिए जिहाद करता है, दिल में थोड़ी सी ख्वाहिश होती है कि लोग भी उसका तज़किरा करें, तो आपने फरमाया उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रखिए, मैं नमाज, रोजे और इबादत और इन्फाक की बात नहीं कर रहा, मैं तो मैदान जंग में जिहाद की बात कर रहा हूं, जहां आदमी की गर्दन कटने का मौका है। वो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला के लिए जंग लड़ रहा हूं, मैं शहीद हो जाऊं, अल्लाह जन्नत दे, लेकिन लोग भी मेरा तज़किरा करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। सहाबी ने 3 मरतबा पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। याद रखिए, ये जो कुछ रियाकारी है, दिखावा है, ये शिरके खफी है। मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिसने नमाज पढ़ी दिखावे के लिए उसने शिर्क किया। मन सामा युराई फकद अशरका, जिसने रोजा रखा दिखावे के लिए उसने शिर्क किया। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याती अलैकुम ज़मान, एक वक्त ऐसा तुम्हारे ऊपर आएगा, युतीलु रजुलु सलातहु लिनज़रि रजुलि इलैहि, आदमी अपनी नमाज को लंबी कर देगा कि लोग दूसरे उसको देख रहे हैं। जो कुछ भी हम करते हैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला दम व कम मिन काइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कितने ऐसे रोजा रखने वाले हैं जिनको सिर्फ भूख और प्यास और शहवात बर्दाश्त करना मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता उनको। कितने तहज्जुद पढ़ने वाले, क़ियामुल लैल करने वाले, तरावी पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको सिर्फ रात जागना नसीब होता है। क्यों? इसलिए कि दिखावा अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करना, इखलास के साथ इबादत करना, ये नहीं होता। यह रमजान हमको बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इखलास के साथ काम करें। यह रमजान हमको सिखा के जा रहा है, इसको पूरी जिंदगी अपनाना है कि हमारी जिंदगी में तकवा की कैफियत आनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, तुमसे पहले के लोगों पर भी फर्ज किया गया, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो सके। तकवा यही है कि हम कहीं भी हों अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगरां है, तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, तुम कहीं भी हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारे मामला, तुम्हारे ताल्लुकात, तुम्हारी मुआशरत, तुम्हारी मईशत, सब कुछ अल्लाह ताला देख रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने सामने हाजिर और नाजिर तस्लीम करके
तुम अपने काम अंजाम दो। तकवा यही है, तकवा यह है कि अल्लाह ताला के अजाब से बचो, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करो। तकवा यह नहीं है कि किसी का हक मार करके रखा है, किसी की जमीन हड़प की है, माँ बाप के साथ गुस्ताखियां की हैं, लोगों की हुकूक अदा किए हैं और मस्जिद में पहली सफ में नमाज अदा करते हैं। यह तकवा नहीं है। तकवा यह है कि मस्जिद में पहली सफ में आदमी हो, रोजा उसका बेहतर हो और इबादत अच्छे अंदाज से अदा करे, लेकिन उसके माँ बाप, उसकी बहनें, उसके घर में उसके बच्चे, उसके पड़ोस, उसके सारे रिश्तेदार, आम मुसलमान उससे खुश हो, वो सरापा रहमत बना हुआ हो, किसी के साथ वो जाती ना कर रहा हो। ये तकवा है। और याद रखिए, तकवा की मेराज जिक्रुल्लाह है। ये जो रमजान है वो हमें यह बता रहा है कि हमेशा अल्लाह को याद रखा जाए। वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह को याद करना सबसे बड़ी चीज है। और फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अफदलुद जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बड़ा जो जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते हमें अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। अल्लाह को याद रखेंगे, कामों में बरकत पैदा होगी। वो हस्ती जिससे बेहतर इस जमीन पर न कोई पैदा हुआ, न है, न क़यामत तक होगा, हमारे दिल की रगों की गहराइयों में ईमान का हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते थे। सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार। अल्लाह को याद करने का मतलब यही नहीं है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस जैसे वज़ाइफ पढ़ते रहे हमें। बल्कि अल्लाह ताला का जिक्र का मतलब यह है कि हमेशा अल्लाह ताला हमें याद रहे और दिल की रगों की गहराइयों से अल्लाह को याद करें। सुभान अल्लाह कहें तो अल्लाह ताला को दिल से याद रखें, अल्लाह अकबर कहें तो अल्लाह को दिल से याद रखें। अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह को याद रखते हैं, खड़े रहते हैं तब भी, बैठे रहते हैं तब भी, लेटे रहते हैं तब भी, और जमीन और आसमान की तख्लीक पर गौर करते हैं तब भी अल्लाह को याद करते हैं और कहते हैं, अल्लाह तू पाक है, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और जहन्नम के अज़ाब से हमको बचाना। अल्लाह का जिक्र कम्प्रीहेंसिव जिक्र है, पूरी जिंदगी पर मुहित है। सोते सोते अल्लाह का जिक्र करें और जागते हुए अल्लाह ताला के जिक्र से हम वाबस्ता हो जाएं। ये बहुत अहम चीज है दोस्तों और साथियों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र कब फरमाते थे, तो आपने फरमाया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला का जिक्र हर वक्त करते थे, कोई वक्त बचता नहीं था। हम गफलत में हों और हमें फिर याद आए तो अल्लाह का इस्तेहजार हो जाए। अल्लाह का इस्तेहजार का मतलब वो हमें देख रहा है, उसी के कब्जे कुदरत में सब कुछ है, रोजी का मालिक हुआ है, सेहत का मालिक हुआ है, हमारे खुशहाली का मालिक हुआ है, हमारे घरों में राहत का मालिक हुआ है, उसी के हाथ में सब कुछ है। वो जो चाहता है वही होता है कायनात में, वो जो नहीं चाहता वो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को हमको गहरा कर लेना चाहिए। दोस्तों और साथियों, एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की बहुत सारे मसाइल और शरीयत की बड़ी चीजें मेरे ऊपर बोझल हो गई हैं। आपने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जुबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से तर रहनी चाहिए। हमेशा ये जुबान अल्लाह की याद से तर रहनी चाहिए। यह रमजान हमको सिखाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो इबादत का सिलसिला है ये सब अल्लाह के जिक्र से बनाया गया है। नमाज अल्लाह की याद के लिए बनाई गई है। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। ये रोजा तकवे के लिए है, वो अल्लाह की बात से वाबस्ता है। ये जो ज़कात लेते हैं हम, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातका सकरुन लहुम। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे ज़कात लीजिए, इसके जरिए आप इनकी तत्कीर कीजिएगा, इनका तज़किया कीजिएगा, इनका दिल साफ सुथरा होगा। और हज तो अल्लाह ताला की किबरियाई ही किबरियाई, अल्लाह की याद है। ये इबादत अल्लाह की याद के लिए बनाई गई हैं। और दोस्तों और साथियों, याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जब आए तो हम तमाम के दिल पर लर्ज़ा तारी हो जाना चाहिए। इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो वो हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आता है तो उनके दिल कांपने लगते हैं, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात की तिलावत होती है तो इनका ईमान बढ़ जाता है, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला के जिक्र से वाबस्ता हो जाइए। यह रमजान का बहुत बड़ा तोहफा है। पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्तेहज़ार कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से वाबस्ता हो जाइए। क्या आप समझते हैं कि जो माल आप कमा रहे हैं, जो कंपनियों में आप काम कर रहे हैं, जो आप तिजारत कर रहे हैं, यह आपको ऐसे ही मिल रहा है? नहीं, लेकिन जिक्रुल्लाह से वाबस्ता हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बरकत उसमें शामिल हो जाएगी। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। नमाज जब खत्म हो जाए जुमा की
तो तुम अपने रिज़्क़ के हुसूल के लिए निकल जाओ, लेकिन याद रखो अल्लाह का जिक्र करोगे तो तुम्हें मिलेगा, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करोगे तो मिलेगा जरूर, लेकिन अल्लाह ताला की बरकत और रहमत उसमें शामिल नहीं होगी। कारून को बहुत बड़ा खजाना मिला था लेकिन बर्बाद हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उससे कई गुना ज्यादा खजाना मिला हुआ था, दौलत मिली हुई थी। वो कहते हैं इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन जिक्र रब्बी, मैंने जो माल से मोहब्बत की है वो अल्लाह ताला की याद के लिए की है। ये माल अल्लाह की याद से वाबस्ता हो जाए, एक एक रुपया जो हमें मिलता है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, अल्लाह को याद करने का जरिया बन जाए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रिया की रविश अपनाओगे तो मैं और दूंगा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। दोस्तों और साथियों, मैदान जंग में आदमी होता है तो आदमी के पास इमरजेंसी की कैफियत होती है, कभी भी गर्दन कट सकती है, लेकिन कहा मैदान जंग में अगर अल्लाह का जिक्र नहीं होगा तो कामयाबी दुश्मन के मुकाबले में नहीं आई होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, जब मैदान जंग में तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर तुम दुश्मनान के मुकाबले में खड़े हो, जम जाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसरत से तज़किरा करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिल सके। हमेशा हमारी जिंदगी में हमारा चलना फिरना उठना बैठना जिक्रुल्लाह से अगर वाबस्ता हो जाए तो ये तक़वा की मेराज है, ये हमारी जिंदगी का हासिल होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, ये मालो असबाब अल्लाह के जिक्र से गाफिल करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। ये हमारा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर न लेके चला जाए, ये हमारी औलाद अल्लाह ताला से दूर न लेके चले जाए, ये हम तमाम को देखना चाहिए। शैतान लगा हुआ है हम तमाम को अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने में। इस्तहवदा अलैहिमुश शैतानु फअनसाहुम ज़िक्रल्लाह, शैतान मुसल्लत हो गया है उनके ऊपर और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से गाफिल उसने कर दिया है। हमारी जिंदगी बेहतर बननी चाहिए, हमारी जिंदगी में रूहानियत आनी चाहिए। हम अगर याद करते हैं अल्लाह को तो अल्लाह ताला हमको याद करता है। उद्कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। कभी भी तुम रुस्वा नहीं हो सकते, कभी भी तुम जाया नहीं हो सकते। दिलों का सुकून टेबलेट में नहीं है, कैप्सूल में नहीं है, दिलों का सुकून मालो असबाब में नहीं है, दिलों का सुकून इज्जत और शोहरत में नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में मिलता है। हम तमाम को कोशिश करना चाहिए कि हम तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से वाबस्ता हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अना इंद दन्नि अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के पास हूं। व इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतु फी नफ्सी, बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं अर्श इलाही पर बैठा हुआ अपने दिल में उसको याद करता हूं। हम हकीर फकीर गुनहगार लोग अल्लाह ताला को अपने दिल में इखलास के साथ याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमें अर्श पर याद करता है। व इन ज़करनी फी मलाइन ज़करतु फी मलाइन खैरिम मिनहुम, अगर वो किसी मजलिस में मुझको याद करता है तो उससे अच्छी मजलिस फरिश्तों के मजलिस में उसको मैं याद करता हूं। मैं जब भी ये हदीस पढ़ता हूं मैं ये बात अर्ज कर देता हूं, इसलिए कि इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। हम अल्लाह ताला का तज़किरा इस जुमा के खुतबे में कर रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अर्श पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों की मजलिस में हमारा तज़किरा कर रहा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये जो सूरत हाल है ये गैर मामूली अहमियत की हामिल है। वहीं नतानी बिशिबरिन अतैतुहु दिरान, मेरी तरफ एक बालिश आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूं। वहीं नतानी दिरान अतैतुहु बान, मेरी तरफ अगर वो एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ एक गज आता हूं। वहीं नतानी यमशी अतैतुहु हरवला, मेरी तरफ चल करके आता है तो मैं बढ़ करके उसकी तरफ पहुंच जाता हूं। यह है हमारा रब। ये पूरा रमजान रब को खुश करने के लिए हमने मनाया, उसके आखिरी अय्याम बचे हुए हैं। तकवा पैदा होना चाहिए, इखलास पैदा होना चाहिए, रियाकारी से पाक होना चाहिए, जिक्रुल्लाह की कैफियत होनी चाहिए, कुरान मजीद से और वाबस्तगी हो जाना चाहिए। उसका पढ़ना, उसका समझना, उस पर अमल करना, उसको फैलाना, उसके अहकामात को इस जमीन पर नाफिज करने के लिए कोशिश करना। और इसके साथ साथ हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए रमजान के बाद भी क़ियामुल लैल का एहतमाम करें। रमजान में आपने कितना वक्त दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के बाद आप सो जाएं। इशा के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात करना मना है, लेकिन हम खूब बात करते हैं। लानत हो उस सोशल मीडिया पर और उस स्मार्टफोन पर जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल करता हो और तहज्जुद पढ़ने में कोताहियां करता हो और फजर में बंदे को आने नहीं देता हो। यहाँ अपने आप को मैनेज कीजिए, बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए सोशल मीडिया का, स्मार्टफोन को लिमिटेड औकात में इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। इशा के बाद जल्द सो जाइए, 12, 1, 2 बजे तक नींद पूरी हो जाए, फिर क़ियामुल लैल कीजिए। अपनी पूरी जिंदगी में इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां रोशन हो जाएंगी। आखिरी बात जो मैं इस खुतबे में कह सकता हूं वो ये, ईद आने वाली है, लेकिन यतीमों की भी ईद होगी। ईद आने वाली है, बेवाओं की भी ईद होगी। ईद आने वाली है, जेलों में नाकर्दा गुनाहों की सजा काट करने वाले हमारे भाइयों की भी ईद होगी, जिनकी कोई दादरसी करने वाली नहीं है। एक एक बैरक में 10 बाई
टेन का कमरे में 20-20 लोगों को रखा गया है जेलों के अंदर। वो इफ्तारी और शहरी में परेशान हैं, उनके घर के हालात नागुफ्ता बे हैं। ईद ये नहीं है कि हम अच्छा कपड़ा बना के पहन लें, बच्चों के कपड़े बना लें, अच्छी सेवइयां खा लें। मैं तो इफ्तार के बारे में भी ये कहता हूं कि इफ्तार अपने साथियों को कराना तो ठीक है, लेकिन उन लोगों को इफ्तार कराना ज्यादा अफजल है जिनके पेट खाली हैं, जो खाना नहीं खाते, जो पानी नहीं पी पाते, जिनको घरों में चूल्हे नहीं जलते। आप अपने साथियों को इफ्तार कराएं, लेकिन उनको ना भूलें। आज हमें जेलों में जो लोग कैद हैं उनके बारे में दुआएं भी करनी है, उनकी मदद भी कीजिए। यतीम का कपड़ा बनाइए, बेवाओं का सहारा बनाइए, गुरबा मसाकीन यतीम लाचार मजबूर मुस्तहिकीन के लिए खड़े हो जाइए। आपकी जो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने दी हैं, बंदों के लिए देंगे तो अल्लाह ताला और देगा, और इससे हमारे दर्जात बुलंद करेगा। खैरुन्नास अनफउहुम लिन्नास, लोगों में बेहतर हुआ है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इन सारी बातों पर गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक इनात फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।